the largest update in PUBG Mobile history, with new tech, new UX, and new era. Let's see what surprises await us. New era. The first is a complete upgrade of the main lobby. We have organized the main lobby into 3 separate spaces. One space for each of the following: match, socializing, and store, as well as launched an innovative multi-screen switching mode, exclusively for PUBG Mobile, enabling players to quickly and smoothly switch from space to space. Match lobby. In the match lobby, we've organized existing functions such as team social, gameplay, event, and system feature sections. In addition, we made their displays more concise and clear in order to help players quickly find the functions they need. At the same time, 3 new icons have been added across the top to let players quickly switch spaces. Social lobby. The new social lobby provides players with a collection display space. Players can display their collections here. You can display your favorite vehicle finishes, firearm finishes, and outfits here. Players who visit your space will know your hobbies at a glance. Players can also learn about your experience level through achievements and records shown on the wall. The new main lobby allows you to customize its layout. Come create your own unique interface. New Erangel. Up next, the new Erangel has officially arrived. Upgraded visual effects. The visual effects have been fully upgraded and the ground, sky, and water are more realistic. Building textures are also improved. More resource points. Some areas, such as the nuclear power station, prison, and quarry, have received updates. The number of resource points has been increased. New battleground. A new battleground has been added to the map, which includes cannons, anti-tank hedgehogs, abandoned vehicles, and sandbag barriers. While being immersive, these improvements also increase the combat experience. Some buildings have been changed and others have had their decorations updated. You'll feel refreshed for sure. How you use the new buildings and resources will decide your new tactical style. New tech. In order to provide a more realistic gameplay experience, we fully upgraded the quality of player characters, battles, and the environment. Upgraded player character. Player characters have been upgraded by improving models in the effects of light and shadows. Character details are also more realistic, which can be seen through improved skin textures, hair, expressions, and reflections. Outfit and weapon graphics have also been improved and look even more exquisite. We also focus on improving battle special effects in certain environments. Updated battle graphics. In terms of firearms, we've improved the special effects and particles of smoke, air blast, muzzle flashes, and improved the details of projectile shells. At the same time, the use and magnification of optical scopes has improved, making every shooting experience more realistic. The improvements to parachuting provide a more realistic control experience. Upgraded environments. Regarding the environment, both the color quality and the layering of the vegetation and sky have been improved. Surface reflections for bodies of water have also been improved. The ocean's new effects and gradual depth change will amaze you. Don't you want to take a picture? Many upgrades have also been made to the gameplay experience, such as healing when moving, following while parachuting, and controlling throwables with a gyroscope. Livic's exclusive weapon, M1014. Livic has an exclusive new firearm, the M1014. It's a semi-automatic shotgun that can carry 7 rounds. After equipping the shotgun with a muzzle and bullet loop, you'll be king of the close-range fights. If you like close-range fighting, don't miss this firearm. Cheer Park upgrade. Cheer Park has been completely upgraded. The newly added contest provides a 1v1 practice field. When the other party accepts a challenge request, both sides will automatically enter the zone and begin a 2-minute battle. The system provides players with random firearms, and the player who achieves the winning objective first wins. You can also spectate other players while they are competing. Come and practice to become a sharpshooter. There's a romantic heart-shaped island in the center of the park. On special days, head to the park to play in 2-seater swings, romantic boats, and hot air balloons. And in the future, players will be able to enter the training grounds from Cheer Park. In addition to the original content, target shooting, throwing, and training exercises of varying difficulties. On the 8th of September 2020, the largest version update in PUBG Mobile history was released. What are you waiting for? Start playing now.
adds a whole new level of fun. First of all, the training grounds have been remade. Now, you'll have to enter the training grounds from Cheer Park. On top of the original features of the training grounds, there are now various difficulty levels for shooting range training, throwing training, simulation training, and so on. And each player will have their own exclusive training grounds. There is also a new Quick Draw Arena on the left of Cheer Park Shooting Range, where you'll be able to train on a 1v1 quick draw with other players. To register for quick draw battles, you can do it at the e-board at Cheer Park, or via the shortcut button at the top of the interface. Once the registration is successful, you'll be able to compete with other players in the registered version. Be interrupted by other players while practicing with your friends? You can always tap on the player you wish to play with to send a private quick draw invitation. Once the challenge request is accepted, both parties will enter the quick draw arena automatically. Before starting a quick draw match, players will be able to select from a range of firearms and set the winning objectives. If a specific type of firearm has been selected, then both parties will use the same type of firearm automatically. However, if a normal quick draw is selected, then both parties will enter the arena with their own selected firearms. Each round lasts for 2 minutes, and the player who achieves the winning objective first wins. On top of participating in challenges, you can also spectate the exciting duels of other players. Last of all, do you see the island in the middle? That is a newly built island in the lake. It has a couple of swings, romantic flower boats, and even hot air balloons. If you look at it from up high, you'll notice the island is heart-shaped. It must really be romantic to visit this place with friends or someone special to enjoy the beautiful scenery. Coming up, there will be more exciting and fun Cheer Park content released in October, so be sure to follow the official PUBG Mobile social media for upcoming content releases. This is the perfect place to unwind and relax in between the intense battles of PUBG Mobile. What are you waiting for? Gather your friends and explore the all-new Cheer Park together. You might even meet new, like-minded friends. Enhanced system upgrade. Now, you can sign up and use a new video review feature to help fight the cheats and keep matches fair. The video review allows players to check suspicious activity so we can identify the use of cheats. Players can access the video review interface via the BandPan system, where they will see videos review and details of the reporting player. On this page, you can apply, and if accepted, you'll become an investigator. Once you're an investigator, you can watch videos awaiting review and identify violations. Make the right calls and you could get named Master Investigator. If a player is reported by others during a match or suspicious behavior is noted, a first-person view recording is generated. That video is sent to the BandPan system and logged for review. An investigator will then watch it and choose one of 3 options: violation found, no violation, or unsure. If over half of reviewers identify a violation, our staff will carry out a second check. As soon as we confirm a violation, the offending player gets the appropriate ban. Obviously, if you want to become a skilled investigator, you'll need to get some experience. So, try our training feature to train your investigator skills. You can train all the skills you need with practice videos. While reviewing videos, you won't see information such as room doors or supplies. To help investigators make the right call, we've added some visual aids. Figures highlighted red are opponents visible from first-person view. Figures highlighted yellow are opponents not visible from the first-person view. Figures highlighted green are friends not visible from the first-person view. This information will help you decide if someone's cheating. We are determined to maintain a fair and fun PUBG Mobile experience, and have always fought against cheats. Now, we hope you'll join us to make our matches honest. Join the investigation team and keep PUBG Mobile fair and transparent.
Welcome to the all-new Arendelle. Y'all are our first visitors. Stick with me and don't get lost as I take you on a guided tour of this place. Our first stop is the prison, which has always been a popular battle zone. The prison has been completely remodeled. New warehouses and outposts were added, and building walls have been painted a new color. Now that it's enclosed by walls, it looks like things have gotten a little more order in the ground. At the same time, these changes introduce more variables that affect attack and defense strategies. The cover provided by the wall seems to be really advantageous for attackers. Look up and you see the traces of time on the cliff. Over the course of many years of change, the surrounding highlands have become uneven. Hey, are you thinking of having a dance battle on this empty court? Let's go to our next stop. Built Up Tower. Something major must have happened here at Built Up Tower. It looks so ruined and tattered. The broken towers here remind us of the harsh times of the past. At the same time, it has made this a hot photo spot in Arendelle. More warehouses and buildings were built here when Built Up Power was repaired, turning the power plant into a resource-rich warehouse zone. I'm sure this place will be crowded in the future. More people means even fiercer competition. Maybe you should take this as a chance to check out the place first. Just so you know, these warehouses here have a little secret. I think that's it for this place. Hop on the boat. The depth and color of the water has changed significantly due to the regular water treatment at Arendelle, and the dancing light reflecting off the water surface is even more dazzling. It's so nice to pop on a pair of sunnies and go boating on a sunny day. Take a look around you. A lot of abandoned military equipment lies along the coast. A lot of military equipment has been added to the new Arendelle, and these fortifications make it more difficult to land from the coast. On the other hand, if you find yourself trapped at the coast, you'll find that these covers will give you more protection. Let's take a break now. We're going to the quarry now. The addition of 7 large warehouses to the quarry has drastically increased the resources here. We believe that this place will become a new popular landing spot. Whenever I come here, I can't help wondering about something. Is it really possible to dig up some gold here? Let's leave the field now and take a tour of the city. Haha, this is Pajinki. Unbelievable, right? The overall layout is the same as before. Some buildings and walls are now a different color. The bright colors have filled Pajinki with life and energy. Our day 1 tour of the new Arendelle ends here. I can't believe you haven't had the chance to explore this beautiful new continent yet. There are many more charming things here than what I've shown you today. Team up with your friends and explore this map. What? I wanna pay you well. Will you marry me? No way! What? Nice to see you again. How can I help you today? What do you think? This is perfect. It looks really beautiful. Sorry? No! What's happening? Okay, everybody, listen up. Whoa, party! Okay, check your equipment before we go. No! Don't even think about this. I can't believe Erangel is going to leave us. They said the new Erangel is coming before the old one. Yeah. We should get one last chicken dinner before it leaves. Yeah, that's right. We know it. Chicken dinner.
पता ही है। और द बैंड ऑफ ब्रदर्स, दैट इज IND, हमेशा से कंसिस्टेंट रहे। कुछ नए रोस्टर्स के भी आई थिंक चेंजेस ये तस्वीरें एक नए दरियाफ्त हुए जजीरे लीवी से ली गई हैं। ये माना जाता है इधर हर एक जंग सिर्फ 15 मिनट तक चलती है। इसकी वजह से इधर हर कोई अपनी जिंदगी बहुत तेजी से जीता है। इधर हर कदम पर बर्फ है और बहुत सारा मसाला भी। कम लफ्ज़ों
लफ्जों में कहा जाए तो 15 मिनट में या तो आप खत्म होंगे या ये गेम। तो आइए और लीजिए हिस्सा इन फ्यूरियस 15 चैलेंज में। करें डाउनलोड PUBG मोबाइल। Hello everybody, hello. I'm very excited today. चेंजेस देखने को मिले तो लाइक आई एम रियली एक्साइटेड। आज जो भी होने वाला है हम लोग सिर्फ ये जो उत्सव है यहाँ पे जो चल रहा है इट्स गोइंग टू बी अ फन इवेंट, सभी एंजॉय करने वाले हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जी हाँ, देखने को तो काफी इंटरेस्टिंग मैचेस हमको मिलेंगे और जो चीजें आपने बोले उन बातों से तो मैं सहमत ही रहूंगा, लेकिन उसके अलावा भी एक चीज आ जाती है हर एक रीजन का। आई मीन आपने और मैंने मिलके साथ में 3 अलग रीजन कास्ट करे, अभी वाइल्ड कार्ड के मैचेस भी हमने देखे थे। तो हर एक रीजन का एक सेट प्ले स्टाइल होता है। अब वैसे प्ले स्टाइल्स भी आपस में टकराने वाले, जैसे हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की टीम्स की, तो वहां पे हमें पता है कि अग्रेशन नेक्स्ट लेवल पे चलता है। इंडियन टीम्स टैक्टिकल गेम प्ले और थोड़ा एक स्लो वॉच्ड आउट कंट्रोल्ड अग्रेशन प्ले स्टाइल के साथ वहां पे खेलना पसंद करती है। यूटिलिटी यूजेस की कंपैरिजन करें, पाकिस्तान में यूटिलिटी कम और गन पावर पे ज्यादा टीम्स रिलायंट रहती है। अब उसी मिक्स में अगर मैं बांग्लादेश की टीम्स की बात करूं तो वहां पे अग्रेशन के लिए एक ही नाम सामने आता है, वो था INES का। वेनम लेजेंड्स की बात करें, वो सारे के सारे पॉइंट्स अपनी रोटेशंस के बेसिस पे निकालते हैं। जब हम मैचेस कास्ट कर रहे थे साउथ एशिया रीजन के, तब आपको याद हो ये एक ऐसी टीम थी जो कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ करके, चाहे इनके पास स्किल्स होना हो, ये कुछ ना कुछ करके टॉप 3 के अंदर आ ही जाते थे। और वैसे प्ले स्टाइल्स अब देखना होगा कि बाकी सारी टीम्स भी एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगी और उन्हीं चीजों के चलते यहाँ पे जो एक्शन हम लोगों को देखने को मिलेगा, आई थिंक जीत सबसे ज्यादा बड़ी जो वो हमारी ऑडियंस की यहाँ पे होने वाली है। एब्सोल्युटली, आई मीन अभी देखिए जैसे आपने बोला सर, भिन्न भिन्न रीजन्स के नए फ्लेवर्स आने वाले हैं। पाकिस्तान का अग्रेशन यहाँ पे दिखने वाला है और बहुत सारी स्पेकुलेशंस हुई थी टीम बबलू को लेके कि वन ऑफ द मोस्ट अग्रेसिव टीम्स है। तो नाउ अभी उनको जो हमारी रीजन है उनके बेस्ट टीम्स के सामने यहाँ पे खड़ा करा रहे हैं। तो देखना वही रहेगा कि इन लोग का परफॉर्मेंस किस हिसाब से रहता है, क्या वो अपने नाम की तरफ स्टिक अप कर पाते हैं या फिर विल बी क्रम्बलिंग डाउन टू द प्रेशर। बट सब बात कर रहे हैं यहाँ पे रैंगल का फर्स्ट मैप कुछ ही क्षण में स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मैप होने वाला है फर्स्ट मैप। ऑब्वियसली हमने तो आई एम ऑन अ क्लीन स्लेट, मैं तो पूरा दिमाग खाली करके आया हूँ कि मैं तो देखने वाला हूँ कि आज की जो हमारे टीम्स हैं उनका कैसा प्रदर्शन रहता है, क्या क्या हम लोग को गन फाइट देखने को मिलेंगी, ड्रॉप लोकेशंस कैसी रहेगी। और हाल ही में आपको भी पता है जो ट्रेंड चल रहा है रैंगल इज द न्यू वीकेंडी, तो बहुत सारे लैटरल्स तो हम लोग को एब्सोल्युटली देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए अभी मैच की तरफ चलते हैं और फ्लाइट पाथ ट्रैजेक्टरी भी आ चुका है यहाँ पे। सो स्नोफ का मिलिट्री बेस से जाता हुआ ट्यूवेट स्टैल्ब, तो एक ईस्टर्न शिफ्ट हल्का सा देखने को मिलेगा। और इमेजिन जॉनी, अगर जो हमारा सर्कल बनता है वो वेस्टर्न साइड पे बनेगा तो कितनी सारी टीम्स को रोटेट करना पड़ेगा। आई मीन डेफिनेटली ये अगर ऐसी सिचुएशन हमको देखने को मिली तो मजे बहुत आ जाएंगे। और फिक्सेस आप अगर हम लोग अपनी हमारी ऑडियंस को भी बता दें कि आप और मैंने जितने मैचेस साथ में कास्ट कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा क्रेजीनेस हमको कहाँ देखने को मिलती है फिक्सेस, इट्स इन द 4th रैंगल। और आज का चौथा मैच भी हमारे पास रैंगल ही रहेगा। सो लेट्स सी कि वहाँ पे क्या होने वाला है। बट अभी ये जो ट्रेजेक्ट्री है ये मेजरली जैसा आपने बोला कि ईस्टर्न साइड पे ज्यादा रिलायंट है। वेस्टर्न जो भी एरियाज रहने वाले हैं हमारे पास, प्रेमोस, क्वेरी, कटका, जॉर्जपोल कंटेनर, जॉर्जपोल सिटी, नॉर्थ जॉर्जपोल सिटी, जहां हमें पता है कि टीम बबलू जो है वो काफी ज्यादा जाना पसंद करते हैं, तो वो एरियाज इस ट्रेजेक्टरी से काफी दूर हो जाते हैं। अब वैसी सिचुएशंस में एक और चीज आपने बोली थी हमारे प्री गेम सेगमेंट में कि हमको अर्ली कोलिशंस दिखाई देंगे, रोटेशंस जो है उनको चैलेंज किया जाएगा और वो चीजें अब होने के ज्यादा चांसेस होने वाले हैं।
या जी हाँ बिल्कुल वो होने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं बट जैसे हम लोग ड्रॉप लोकेशंस की बात कर रहे थे तो IND अपने क्लासिक मिलिट्री बेस का ड्रॉप लोकेशन एग्जीक्यूट कर रही है साथ ही साथ हम उनके साथ हम लोग को एक आई थिंक NF के रीलाइट आई थिंक ये उनके सब है जो फिलहाल खेल रहे हैं टीम सोल का भी एक इंटरेस्टिंग ड्रॉप लोकेशन यहाँ पे मुझे भी नजर आ रहा है क्योंकि काफी टाइम से हमने उनको कास्ट नहीं करा है तो इस बार वो लोग मैंशन की तरफ हेड आउट कर रहे हैं A1 Esports की बात करें तो यस नाया की तरफ जा रहे हैं और जैसे बबलू की आप अभी बात कर रहे थे तो वो भी अपने जॉर्ज पॉल एरिया की तरफ हेड आउट कर रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न जॉर्ज पॉल सिटी लूटना पसंद करते हैं ऑरेंज रॉक अपने क्लासिक वाटर एयर टाउन पे जा चुकी है टीम वुल्व्स की अगर बात करें वो रॉक की तरफ है फनाटिक का भी जो ड्रॉप लोकेशन है वो भी सेम ही है तो अभी मॉडल हमारे स्क्रीन के सामने आ चुके हैं तो उनकी जो नई ड्रॉप लोकेशन है उनका जो नया लाइनअप है उसके साथ वो आज क्या कमाल दिखाने वाले हैं दैट वी विल विटनेस फिक्सेस मेरा आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला है एंड आई होप आपको ये चीज याद हो डिड यू ऑफर द चिकन टू द PUBG गॉड्स आज तो भूल गया क्योंकि आज तो इतने सारे इवेंट से हम लोग वहाँ पे भी कास्ट कर रहे थे बट स्टिल यहाँ पे PUBG मोबाइल गॉड्स जो है हमने परसों जो ऑफरिंग की थी वो मतलब आई गेस शुड वर्क आउट 2 दिन तो एटलीस्ट चल ही जाना चाहिए क्योंकि हमारे आई थिंक दर्शकों को इस बात से वाकिफ भी हम लोग को करवाना पड़ेगा तो बेसिकली बात ये है कि मैं और जॉनी हमेशा जब भी पाकिस्तान कास्ट करते हैं या फिर साउथ एशिया कास्ट करते हैं हम लोग को अपनी प्रेडिक्शंस पसंद है देखिए हमारा उतना मतलब ओशन जितना तो एनालिटिकल प्राउस नहीं है कि हम लोग ऑन डेटास और एनालिटिक्स की तरफ चले जाए बट हम लोग क्या कर सकते हैं वी आर इंडियंस हम लोग प्रार्थना करते हैं हम लोग भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं तो इसी हिसाब से हमने यहाँ पे PUBG गॉड्स को रोज चिकन ऑफरिंग करी है तो उसके चलते हम लोग के पास हम लोग को जो भी सर्कल कास्ट करना रहता है हम लोग को कहीं ना कहीं से किसी ना किसी मैप पे तो मिल ही जाता है तो दैट्स द एंटायर जिस्ट बट अभी अगर गेम की तरफ हम लोग वापस चलते हैं A1 Esports के प्लेयर्स यहाँ पे यस्नाया की तरफ उतर चुके हैं एक फिर भी एजेस की तरफ खेल रहे हैं और जो सर्कल जैसे बात कर रहे थे काइंड ऑफ गुड सर्कल जेनेरिक सर्कल बना है वी जस्ट हैव टू सी कि टीम्स इसको कैसे कैरी करती है जी हाँ सेंटर और ईस्टर्न साइड पे सर्कल ज्यादातर स्प्रेड है और जैसा A1 Esports की बात कर रहे थे हम तो उनको भी देखना होगा कि साउथर्न साइड जब सेंटर कंट्रोल लेने की कोशिश करेंगे तो किस तरह से टीम रिटेलिएट करती हुई नजर आती है अब इस चीज पे भी थोड़ी यहाँ पे टीम्स के बीच में हम कंपैरिजंस रेज कर सकते हैं जैसे अगर हम बात करें कि टीम्स फ्रॉम पाकिस्तान और जो हमारी बांग्लादेश की टीम्स है वो सेंटर कंट्रोल के लिए काफी ज्यादा जल्दी चले जाती है और अगर उसी पॉइंट पे हमारे इंडियन टीम्स को कंपेयर करें तो वहीं पे टीम्स के प्ले स्टाइल्स जमीन आसमान में फर्क आ जाता है कि किस तरह से टीम्स हमको अगर टीम IND की बात करें वो लोग थोड़ा सा एजेस पे हमको खेलते हुए नजर आते हैं फिर हमारी जो इंडिया की अग्रेसिव टीम्स है जैसे टीम फनाटिक हो गई वो हमको सेंटर कंट्रोल लेता हुआ नजर आती है क्योंकि वो फाइट्स वहां पे लेने के लिए चले जाते हैं ऑरेंज रॉक की बात करें तो वहां पे भी हमको वही चीज नजर आती है वो फाइट्स बहुत ज्यादा जल्दी पिक करते हैं सेंटर में जाके बट वहाँ पे जैसे आज ही हमने जो पाकिस्तान के मैचेस कास्ट करे तो वहाँ पे फाइट्स हमको सेंटर पे होती नजर नहीं आती लेकिन मिलिट्री आइलैंड के ऊपर अगर आप आ रहे हैं तो इस टीम से तो टकराना ही पड़ेगा IND वर्सेस TG की यहाँ पे फाइट होती हुई क्राइसिस ने नॉक निकाला है क्रेटोस का और काफी आसानी से उनको फिनिश ऑफ भी कर देंगे अब यहाँ पे एक प्लेयर का दोनों टीम्स अपने लिए ट्रेड निकाल चुकी है और ये थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो जाएगी क्योंकि अब बाकी के टीममेट्स को जब इन्फॉर्मेशन जाएगी कि दोनों टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं तो किस तरह से ये लोग रिटेलिएट करेंगे ये हमें कुछ ही सेकंड में पता चलेगा अब देखिए TG के प्लेयर्स मिनी मैप पे हमको नजर आ रहा है कि स्प्लिट हो रखे हैं 1-3 का इन्होंने स्प्लिट डाला था 2-2 का स्प्लिट डाला था जो 1-2 में कन्वर्ट हो चुका है दूसरी तरफ टीम IND जो है वहाँ पे क्रेटोस गए थे आगे मिलिट्री ब्रिज को स्काउट करने के लिए मगर क्रेटोस को पिक कर लिया गया बाकी के प्लेयर्स अब आ रहे हैं यहाँ पे और क्राइसिस के ऊपर बहुत ही बड़ा क्राइसिस आने वाला है लिविंग अप टू हिज नेम बट जैसे आपने बोला है इस बार IND की तरफ से दिलजीत देखने को मिल रहे हैं तो एक पुराना IND जैसे आप बोल सकते हो वो हम लोग को देखने को मिल रहा है इस बार दिलजीत यहाँ पे हाई ग्राउंड ले चुके हैं साथ ही साथ इनके ट्रांस भी मौजूद है बट अगर यहाँ पे बात करें टीम TG की तो पाकिस्तान रीजन की एक टीम और इसी चीज की बात करें जो फ्लेवर्स आते हैं क्योंकि आपको पता नहीं आपके ओपोनेंट्स कहाँ उतरते हैं तो क्रेटोस वाज ऑब्लिवियस उनको नहीं पता था कि यहाँ पे क्राइसिस मौजूद रहेगी उनके टीममेट के साथ जरूर एक प्लेयर को नॉक और फिनिश किया बट उसके बाद वो खुद ही फिनिश हो गए थे और जरूर एक पॉइंट तो ऑब्वियसली टीम IND को मिली बट साथ ही साथ उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है
ये नुकसान तो वहां पे हुआ है, और जिस तरह से ये सर्कल हमको नजर आ रहा है तो आई थिंक ये थोड़ा सा हार्डशिप हमको लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि स्प्लिट है दोनों आइलैंड्स के बीच में। हमारा जो नोवो रेपनॉय का ब्रिज रहता है वहां पे वो भी मौजूद है, तो थोड़ा सा एक नॉर्दर्न हार्डशिप हमको वहां पे देखने को मिलता है। आई मीन हमारी अगर हम लोग अपने पबजी गॉड्स को भेंट चढ़ाते तो फिर आई थिंक मैं तो बोलता कि सदर्न शिफ्ट हमको देखने को मिल जाए, क्योंकि जो फिर ब्रिज कैंप सबको देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग नजर आता है। बट अभी दलजीत नजर आता है हमारे को, ये जो एक माउंटेन पीक रहता है मिलिट्री ब्रिज के पास में, वहां पे उन्होंने अपनी बग्गी पार्क करी थी। लेकिन क्राइसिस अभी भी उसी घर के अंदर घुसे हुए हैं, और उनको भी आइडिया है कि अब प्लेयर्स जो हैं टीम आईएनडी के वो उनको रैप अराउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक बार उन्होंने उनको चोक पॉइंट में फंसा लिया तो कहां से उनको पिक ऑफ कर लिया जाएगा ये बात उन्हें भी पता नहीं चलेगी। या एब्सोल्युटली मैं बिल्कुल देखना चाहता हूँ कि क्राइसिस के जो बाकी दो टीममेट्स जो फिलहाल अभी रोटेशन दे रहे हैं, क्या उनके पास आ रहे हैं या फिर उनको अबैंडन ही कर दिया, क्योंकि अभी जैसे सिचुएशन बन चुका है आपको भी पता चल चुका है कि क्लॉ डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे टीम आईडी के 3 प्लेयर्स, दलजीत ने एक फ्लैग एंगल रख रखा है और वहां से ट्रांस और रीलाइट जो है वो प्रेशर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो मोमेंट नॉक आता है या फिर कोई भी रोटेशन यहाँ पे प्लेस करते हैं तो वो उसको फिनिश ऑफ करेंगे। बट फाइन के यहाँ पे प्रेडेटर ने डीसी के प्रो नूब T69 को नॉक करके इंस्टेंटली फिनिश कर दिया, तो 3 प्लेयर्स एक प्लेयर के ऊपर चढ़ गए, आराम से उनको फिनिश कर दिया। बट साथ ही साथ यहाँ पे रीलाइट आ चुके हैं, ग्रेनेड यहाँ पे कुक टू परफेक्शन यहाँ पे लॉक भी कर दिया, बट नहीं यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पाए। बट उनका पोजीशन ऑलरेडी पता चल चुका है, दूसरा ग्रेनेड भी यहाँ पे कुक कर चुके हैं, ये भी लॉक करने की कोशिश करेंगे। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो शायद टीम डीजी काफी दुविधाओं में फंस सकती है। काफी ज्यादा डैमेज ले लिया यहाँ पे प्लेयर्स ने, और रिलाइट इसी के साथ पुश करने वाले हैं, और डैमेज तो इन्होंने इनिशियल दे रखा है, पीछे से कवर फायर भी आ रहा है और हल्का सा बस पुश करना इनको बाकी है। बाकी क्राइसिस अभी भी अब अड़े हुए हैं यहाँ पे, उनके पास आई गेस यूटिलिटीज की कमी खनक रही है। और देखिए ये एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन टीम आईटी की तरफ से आता हुआ, दलजीत ऊपर में मौजूद थे, यहाँ पे ओपोनेंट्स ने उनको रैटल कर दिया था और उसका फायदा बहुत ही शानदार तरीके से दलजीत ने उठाया, ये नॉक कंप्लीट किया, फिनिश भी कर दिया, और आईएनडी क्रेटोस को खोने के बावजूद यहाँ पे ऑलरेडी 2 किल्स निकाल चुकी है। जी, और उसी चीज की बात जो हम पहले कर रहे थे कि कंट्रोल्ड अग्रेशन किस तरह से टीम को हेल्प करता है, यहाँ पे आईएनडी को पता था उनके पास मैन एडवांटेज रहने वाला उस फाइट में, और उसी चीज को काफी अच्छे से यूटिलाइज करते हुए, चाहे एक ही प्लेयर था बट आपको एक प्लेयर को भी रिस्पेक्ट देके थोड़ा खेलना होता है, क्योंकि अगर वो एक प्लेयर आपको किसी तरह चोक पॉइंट में समझाता है, तो उस कॉम्पाउंड के अंदर बेसिकली वो दरवाजा था जहाँ से पीछे से एंट्री ली गई न्यू रीलाइट द्वारा, वहां डोरवे पे ही आप 1 से 2 प्लेयर्स को पिक ऑफ कर लेते अगर दोनों प्लेयर साथ में चार्जिंग करते हुए नजर आते तो, और बैरल क्लोज रेंज पे बहुत ही ज्यादा डेडली हो जाती है। लेकिन ये जो वेपन हमारे पहले एयर ड्रॉप के अंदर आएंगे उससे भी थोड़ा ज्यादा डेडली हो जाता है। ग्रोजा आती हुई पहले एयर ड्रॉप में सप्रेसर के साथ स्नाइपर्स के लिए, साथ में रहेगा मिलिट्री वेस्ट, हेलमेट और फर्स्ट एड किट भी वहां पे मौजूद था, तो प्लेयर्स को तो काफी हेल्प मिलने वाली है अगर यहाँ पे टीम जो है जाती हुई नजर आती है हमको उस एयर ड्रॉप के लिए। फनाटिक एयर ड्रॉप के काफी ज्यादा करीब, लेकिन पहली फाइट होती हुई टीएम और टीम बबलू के बीच, जिसमें टायरेंट को पिक ऑफ कर लिया गया। अब हम जानते हैं कि टायरेंट जो है अपनी टीम से काफी ज्यादा अलग खेलते हैं और बहुत ही स्प्लिट फॉर्मेशन में इनकी टीमों को घूरती हुई नजर आती है, बट ज़िबियान आते हुए बैकलाइन से दांते को उन्होंने डाउन किया, योलो भी स्पॉट आउट हो चुके हैं और अब सिचुएशन थोड़ी इवन कर दी जा सकती है। पिकाचू लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रे कनेक्ट करने की कोशिश, थोड़े बहुत शॉट्स उन्होंने कनेक्ट भी कर लिए, बट उसके बाद भी नॉक वहां पे निकालने में सक्सेसफुल नहीं रहते। फिर से एक बार स्प्रे कनेक्ट करने की कोशिश M4 और 6x के साथ, और उसी के साथ जो है ब्लू जोन का डैमेज भी इनको पड़ रहा था। पिकाचू फाइनली दूसरा नॉक निकालते हुए अपनी टीम के लिए, बट ये फिनिश ऑफ जो है, ये फिनिश करने में इनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। दोनों के दोनों प्लेयर्स अभी ब्लू जोन का तो डैमेज ले रहे हैं। ऑलराइट, आई थिंक वो जो प्लेयर्स हैं वहां पे वो अपने आप ही फिक्सेस फिनिश हो जाएंगे, उनके टीममेट्स काफी आगे जा चुके हैं। एब्सोल्युटली, यहाँ पे आई थिंक बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बट अगर टीम बबलू की बात करें तो ऑब्वियसली मैं डैनी को बहुत ज्यादा यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, क्योंकि उनके टीम के लिए एंट्री फ्रैगर रहते हैं और पिकाचू को बहुत ही अच्छा सपोर्ट करते हैं। नो डाउट ज़िबियान एक नया एडिशन है, बहुत अच्छा खेलते हैं, टीम वुल्फ
का भी हमने देखा है जो कि अब तक जिंदा है, बट पिकाचू और डैनी हैव ऑलवेज इम्प्रेस्ड मी फ्रॉम टीम बबलू। पिकाचू फिलहाल अभी के लिए जिंदा है और यहाँ पे बबलू के लिए खराब शुरुआत होती हुई, बट सर्कल की यहाँ पे बात करें तो आई गेस मिल्टा की तरफ हेड आउट करता हुआ नजर आ रहा है सर्कल। सोचिए जॉनी, अगर एक जो कर्व बॉल आता है जो लैटरल शिफ्ट की जिसे बात करते हैं हम लोग, अगर नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे चली गई जहाँ पे A1 esports के प्लेयर मौजूद है तो कुछ दिक्कतें हो सकती है, बट यहाँ पे किल एंटो वीरू है और ये संतरा पत्थर कौन है? इज इट मवी? I think so, but अगर ट्रांसलेट करें तो even that means orange rock, तो it has to be someone from orange rock. I mean बहुत खराब जोक मारने की मैंने यहाँ पे कोशिश की, बट ये जो टीम है अभी शेल्टर की तरफ हमको खेलती हुई नजर आ रही है। और जैसा आप कह रहे थे, जो आप बात आपने करी कि A1 esports के साथ जो कोलिजन होगा वो थोड़ा सा आई थिंक ट्रिकी हो सकता है यहाँ पे, और वीरू अपनी गाड़ी रिवर्स पार्क करने की कोशिश करते हुए शेल्टर के बंकर्स में एंड फाइनली सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। और यहाँ पे देखते हैं ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स क्या कमाल दिखाते हैं। और शेल्टर ऑरेंज रॉक की एक पसंदीदा लोकेशन है, आपको भी याद होगा वर्ल्ड लीग के टाइम पे भी इन्होंने काफी सारी फाइट्स वहां पे निकाली थी, बट सोल के प्लेयर्स यहाँ पे सेंट्रल फॉर्मेशन पे मौजूद है, यहाँ पे सेंटर ऑफ द मैप, एपिसेंटर जिसको बोलते हैं, वहां पे आ चुके हैं। कंपाउंड्स भी इन्होंने अपने लिए ले रखा है, उनके ठीक सामने टीम वुल्व्स के प्लेयर्स है, ठीक बगल में शेल्टर पे ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स, और संतरा पत्थर आई हैज टू बी मवी टीम के IGL है, बट सोल के अगर ठीक पीछे देखे तो A1 esports के प्लेयर्स मौजूद है। और सिनिस्टर का आपको याद ही होगा क्या शानदार क्लच इन्होंने निकाला था, पानी के अंदर गाड़ी में बैठ के उन्होंने किल्स निकाली थी, बट ट्रांस यहाँ पे स्प्रे बरकरार रखते हुए बैड रेव को स्पॉट आउट कर चुके हैं। और INES के प्लेयर्स इनफैक्ट लग रहा है कोई नई ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे उनको स्पॉन्सरशिप मिल चुकी है, जिसके चलते टीम BB का टैग लगा है, पर दलजीत ये आज रुकने के मूड में नहीं है फिलहाल, मशीन को भी इन्होंने नॉक कर दिया है। और INT एक अलग ही अग्रेशन में खेल रही है, जो उनकी यूजुअल प्ले स्टाइल रहती है कि स्ट्रेटेजिकल खेलते हैं, रोटेशन पे फोकस करना है, बट सिंस स्क्रिम्स है तो दलजीत काफी करीब भी आ चुके हैं, उनको भी पता है they've got enemies in their radar। दलजीत यहाँ पे मशीन को फिर से वापस से नॉक करेंगे, किल कंफर्म करने की कोशिश, बट पीछे से कवर फायर भी आता हुआ कापशी मौजूद है यहाँ पे डाशिया के बिल्कुल पीछे, और यहाँ पे फिर से ट्राई करेंगे कि मशीन को किसी भी प्रकार रिवाइव दे दे, क्योंकि पीछे से उनके पास अच्छा खासा कवर फायर आ रहा है फ्रॉम तमीम। तो अभी जैसा सीन चल रहा है, कापशी यहाँ पे स्मोक जरूर डिप्लॉय करेंगे, बट दलजीत और रिलाइट ये दो ही प्लेयर्स अभी जिंदा है। ट्रांस एक फ्लैंक एंगल ले चुके हैं, दलजीत के ऊपर हल्का सा नेट जाता हुआ, चिप डैमेज हुआ, बट ज्यादा कुछ नहीं होता हुआ, बट ट्रांस का जो फ्लैंक था वो एब्सोल्युटली 100% ऑन पॉइंट, और यहाँ पे एक और निकाल लिया नॉक। और लास्ट जो बचे यहाँ पे प्लेयर्स टीम BB के, दैट इज तमीम एंड बड्रेव, और कापशी को भी आई थिंक बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो चुका है, किल्स भी कंफर्म हो रहे हैं यहाँ पे। अब देखते हैं दलजीत क्या कमाल दिखाते हैं। जी हाँ, वो चीज़ हमें कुछ ही देर में नजर आ सकती है, बट जैसे BB बाय की बात कर रहे थे तो एक पुरानी और थी जो जैसे मैंने बताया था कि हमारे स्प्रिंग स्प्लिट के PMC में हमको नजर आई थी, तब डिफरेंट रोस्टर होता था, एंड आई एग्री, आई थिंक INES के प्लेयर्स को इन्होंने एक्वायर यहाँ पे कर लिया है। बट दूसरी तरफ वो देखिए TUF और iGen की लड़ाई होती हुई, दोनों टीम्स एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से जानती है, एक दूसरे की रग रग से वाकिफ है, तो वो लड़ाई तो थोड़ी एक इंटरेस्टिंग फाइट हो सकती है। और यहाँ पे जैसे टीम्स जिस तरह से हमको नजर आ रही थी, तो स्टार्टिंग में मिल्टा की जो सिटी थी वो टीम्स ने एक्वायर करी थी थोड़ा सेफ रहने के लिए और वॉच करने के लिए कि सर्कल किस तरह से शिफ्ट होगा। और अब एक फार्म स्प्लिट जो है हमको देखने को मिलता है, सर्कल का शिफ्ट आता हुआ, तो शेल्टर में जितनी टीम्स है उनके लिए काफी अच्छी पोजीशन रहने वाली है। बट अब यहाँ पे फाइट्स ओपन में होती हुई नजर आएंगी, दलजीत तमीम को इंस्टेंट नॉक और फिनिश करेंगे, और इसी के साथ रीलाइट में एंटर होंगे, बैड रेफ को फिनिश किया गया, और BB बाय होती है हमारी सबसे पहली एलिमिनेट होने वाली टीम। हाँ, और यहाँ पे देखिए TUF के अभी फाइट चल रहा है, यहाँ पे TUF के एडगर के ग्रेनेड्स के बारे में सबको पता है, विग फिलहाल नॉकआउट हो चुके हैं, बट iGen के प्लेयर्स यहाँ पे चार्जिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। थॉर अभी भी छोड़ देते हैं, बट उसको स्पॉट कर दिया गया। ईविल आई ऑन द साइडलाइंस, वो भी नॉकआउट हो चुके हैं, और फाइम के प्रिटेंडर थॉर को यहाँ पे जिन्होंने नॉक किया था, एडगर अभी बचे हैं TUF के, और पूरे तीन प्लेयर्स ऑलरेडी पुशिंग कर चुके हैं। एडगर की यहाँ पे अच्छी खासी कोशिश, एक प्लेयर को नॉक किया था, बट ट्रेड ऑफ्स आगे, जिसके चलते यहाँ पे टीम iGen ने बहुत ही शानदार तरीके से टीम TUF को एलिमिनेट कर दिया। जी हाँ, TUF का एलिमिनेशन यहाँ पे आता हुआ iGen के हाथों। और iGen भी अगर बात करें तो फाइम के कुछ प्लेयर्स, फाइम करके एक लाइनअप होता था एक टाइम पे पाकिस्तान के PUBG मोबाइल सीन में, एंड
काफी एक अच्छा लाइनअप था, तो उनके प्लेयर्स यहाँ पे हमको खेलते हुए नजर आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी प्रेडेटर जो है अपना फाइम क्लैन का जो उस टाइम की टीम थी उसका टैग लगा के खेलते हुए इस मैच के अंदर। अब देखना ही होगा कि किस तरह से बाकी की टीम्स परफॉर्म करती है। तो दो टीम्स को तो हमने एग्जिट लेते हुए देख लिया, एक तो बीवी बाय बाय का स्क्वाड था और दूसरी थी हमारी TUF की टीम। 14 टीम्स अब हमारे पास बची है, 50 लोग इस मैच के अंदर जिंदा है। 15 मिनट हो चुके हैं चौथे सर्कल की तरफ गेम बढ़ता हुआ, और टीम सोल कुछ समय पहले हमारी नजरों के सामने आई थी। एक सेफ कॉम्पाउंड उन्होंने रोल किया, और ये देखिए फनाटिक की स्क्वाड एज से एंटर करने की कोशिश, प्लेयर्स को स्पॉट आउट तो कर चुके हैं, बट फाइट लेना यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी होगा। मैक्स कैश ने TG के एक प्लेयर को थोड़ा डैमेज दिया था और नॉकआउट भी कर चुके हैं, बट फिनिश ऑफ निकालना थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी रहने वाला है। जी हाँ, फिनिश ऑफ निकाला बहुत ज्यादा ट्रिकी रहने वाला है इनफैक्ट। बट फनाटिक की अगर रोस्टर की बात करें तो यहाँ पे थर्ड डूड फिलहाल आ चुके हैं, मैक्स काश भी खेल रहे। तो मार्कस गेमिंग के दो प्लेयर्स ने इस बार टीम फनाटिक का जर्सी पहन रखा है, दे जॉइन टीम फनाटिक। बट इविल आई यहाँ पे स्टील शॉट को फिर से स्पॉट आउट करते हुए कार 98 का बहुत ही शानदार हेडशॉट देखने को मिलता है। और देखिए आज ऑफरिंग हमने नहीं करी थी, फिर भी जहां पे प्रेडिक्ट किए थे सर्कल, जहां पे चाहते थे जॉनी, वहीं पे हो गया। तो आर थियरी स्टैंड्स ट्रू एंड आई एम हैप्पी। वो नॉर्थ वेस्टर्न शिफ्ट देख के बहुत ही खुशी हुई। ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स भी वहां पे सर्कल के सेंटर पे मौजूद है, बट फिलहाल डीसी के एटम ने यहाँ पे दिलजीत को एक बहुत ही ऑफ गार्ड पोजीशन पे पकड़ रखा था। ग्रेनेड कुक करके फेंकने की कोशिश जरूर की थी, बट ज्यादा ओवर कुक हो गया था, जिसके चलते यहाँ पे ग्रेनेड वहां तक जा नहीं पाया। बट टीम IND इस बार इनका जो आउटिंग रहा है काइंड ऑफ अग्रेसिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो स्क्रिम्स है, तो नए नए स्ट्रैट्स अप्लाई कर रहे हैं, नए प्लेयर्स आए हैं, यहाँ पे दिलजीत की वापसी हुई है। तो आई थिंक अपनी जो गन पावर है वो ट्राई आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छा आउटिंग इनिशियल उनकी तरफ से जरूर कहना चाहूंगा, बहुत बेहतरीन था, बट अगर वो मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं तो और भी बेहतर हो सकता है। डेफिनेटली मोमेंटम अगर कैरी फॉरवर्ड करे तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए, बट करना यहाँ पे आसान नहीं होगा क्योंकि नई टीम्स आ रही है। ऑरेंज रॉक के गिल वहां पे फॉल डाउन होते हुए E1 esports के अगेंस्ट उनकी टकरार वहां पे थोड़ी सी होती हुई हमको नजर है, और ये फाइट तो प्रेडिक्ट भी करी थी। तो अब देखना ही होगा कि कौन सी टीम उस फाइट में उभरती हुई हमको नजर आएगी। वेनम लेजेंड्स के प्लेयर्स आ चुके हैं हमारी स्क्रीन के सामने, और LTS के प्लेयर्स को उन्होंने स्पॉट किया था। A1 esports थर्ड पार्टी होती हुई TM esports से द मर्सनरीज की जो स्क्वाड है, थोड़ी बहुत दिक्कत उनको वहां पे हो सकती है। और यहाँ पे वेनम लेजेंड्स वर्सेस लिeutenants का जो फाइट है ये किसी भी समय पे चालू हो सकता है, क्योंकि ये देखिए वेनम लेजेंड्स इनको सर्कल के अंदर अब मूव करना रहेगा, और सर्कल पे गेट कीप कर रही है लिeutenants की टीम। शॉट्स उन्होंने भी फायर किए थे अपने हाथों से, तो इन्फॉर्मेशन तो वेनम लेजेंड्स को आ गई होगी। लेकिन इन द मीनवाइल द रियल TG की जो टीम है उनको हम देखते हैं एलिमिनेट होते हुए इस गेम के अंदर से। या बिल्कुल, और स्टार्टिंग से ही देख रहे थे फाइट में बिछड़े हुए थे, काफी दूर दूर थे एक दूसरे से। दो प्लेयर्स के ऑलरेडी यहाँ पे उनको नुकसान हो रखे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं उभर नहीं पाए सर्कल। जब से छोटा चले जाता हुआ नजर आया तब कहीं ना कहीं प्लेयर्स क्रम्बल डाउन करके। बट N5 की यहाँ पे बात करें तो C5 मौजूद है यहाँ पे, बिजी चीकू और नियर, आई बिलीव ये एक बांग्लादेशी टीम है, बट यहाँ पे ऑलरेडी फाइट चलता हुआ गोल्डन जेट यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। वेनम लेजेंड्स के साथ इनकी फाइट चलती हुई, ऑनस्लॉट ने यहाँ पे कोशिश जरूर अच्छी की थी, बट लीरॉय ने यहाँ पे निलॉय ने यहाँ पे उनको कंप्लीट भी कर दिया। वीमो यहाँ पे नॉक पड़े, बट उनको पहले सेफ्टी में आना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पे रिवाइव ट्रिगर कर सकते हैं। बट ये क्या देख रहे हैं जॉरी, 12वें पोजीशन में टीम बबलू गेम से बाहर हो चुकी है। जी यार, मिड रोटेशंस अगर आपके प्लेयर्स पिक ऑफ हो जाते हैं तो आपने और मैंने इस बारे में काफी पहले से बात कर रखी है कि और आई थिंक हमारे जो प्लेयर्स हैं वो भी जानते हैं आपके लेट गेम फाइटिंग एबिलिटी जो है वो काफी कम हो जाती है। और हम जानते हैं कि टीम फनाटिक एक ऐसी टीम है जिनकी लेट गेम फाइटिंग प्राउएस एक अलग लेवल छूती है, और उसी के चलते प्लेयर्स भी बहुत ही ज्यादा पैसिव हुए थे बबलू के, जिसकी वजह से उनको काफी इजीली मैं बोलूंगा टीम फनाटिक वहां पे पिक ऑफ करेगी। और उसके बाद अब टीम फनाटिक के लिए अगला ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? सर्कल देखिए उनसे कितना ज्यादा दूर है, तो सर्कल के अंदर उन्हें मूव कर रहा होगा, बट टीम सोल और ऑरेंज रॉक सर्कल के अंदर इतनी कमांडिंग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। सोल सदर्न एज से वहां पे आराम से गेट कीप करती हुई हमको नजर आ सकती है, और उससे पहले तो जब तक उन पे टीम्स पहुंचेंगी, टीम्स को आपस में ही एक बहुत ही अग्रेसिव फाइट लेनी होगी। ये मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है अब। यस बिल्कुल, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। बट अभी टीम IND के रीलाइट आप देख सकते हो काइंड ऑफ ओपन में फंस चुके हैं, और सर्कल यहाँ पे शिफ्ट करता हुआ ऑरेंज रॉक टीम सोल के फेवर में। अब देखना पड़ेगा जो नेक्स्ट शिफ्ट आता है वो किसके तरफ जाता है। सर्दन साइड से बहुत सारी टीम्स रोटेट करने वाली, तो सोल के पास अच्छा खासा मौका है कि यहाँ पे काफी सारे किल्स अपने नाम कर पाए। बट रीलाइट अकेले बचे, ऑलरेडी टीम IND के 6 किल्स आ चुके हैं, बट कैसे सर्कल के अंदर जाएगी एक बहुत बड़ा चुनौती बनता है। फ्रैंकी ने फिलहाल M5 के नियर को नॉक कर दिया अपने M4 के द्वारा, बट अभी
को फिनिश ऑफ करना भी एक टास्क रहेगा। स्मोक के अंदर शॉट्स देने की कोशिश कर रहे हैं, फिनिश भी इनको कर देंगे, बट मॉर्टल इस बार एक के ऊपर 4 टाइम्स का स्कोप का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमने देखा भी बहुत सारे प्लेयर्स आजकल AK पे स्प्रेज भी कर रहे हैं, 6 टाइम्स पे भी हमने देखा है बहुत सारे बेहतरीन स्प्रेज आते हुए। बट A1 की स्क्वाड यहाँ पे ऑरेंज रॉक के साथ जुलझ रही है, साथ ही साथ वेनम लेजेंड्स के साथ भी फाइट ले रही है। तो एक ट्राइफेक्टा फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है, 3 टीम्स के बीच में फाइट चलता हुआ। और फ्रैंक की अपनी शानदार स्प्रे को बरकरार रखते हुए एक और नहीं सिर्फ 2 नॉक्स निकाल चुके हैं और वुल्व्स डेन भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी। बट फ्रैंक यहाँ पे पुश भी करना चाहेंगे। M5 के प्लेयर्स पीछे से यहाँ पे दिक्कत देने की कोशिश कर रहे हैं, बट फ्रैंक के पास क्रोजा भी मौजूद है। क्रोजा को डेफिनेटली लॉन्ग रेंज पे तो यूज करना नहीं चाहेंगे, बट ऐश यहाँ पे स्पॉट कर चुके हैं। यहाँ पे पीछे से जो कवर फायर